बेसिकली हमारे पास IELTS टू टाइप का है. There is two type of IELTS. One is academic and other is general. But the listening and speaking is same for both types of IELTS. And there is 40 question and 30 minute required for practice. But if you go for paper base, so then they give you a 10-minute extra to transfer the answer from booklet to the answer sheet. But for a computer based test, they give only a 2 minute at the end of the listening to just check your answer clearly. So there will be 40 questions with 1 point for each correct answer. The total number of point is 40. Check how many points you need for the band score you require, which means that if you want to get 7 plus band in a listening, so you should know that how many answer you should correct to get your desired band. Otherwise, if you don't know about the band criteria, so you cannot improve your correct question. हाँ जी सर, आप स्टार्ट कर लें आज का लेक्चर। जी मैम, वही कंटिन्यू है. चलें, ठीक है, थैंक यू। You will have time to read the question before the recording start. Basically, there are four section of listening, and in each section there are 10 question. So when you solve any section, they give you a time to read the question before starting the listening. For example, the speaker can be say read question 1 to 5 within a 30 second or maximum 40 second. And if the speaker say you read 1 to 10 or 31 to 40, then they give you 1 minute. Otherwise they give 30 to 14 second for a revision. That actually help student to know before listening start. And the other thing you should also know about, you can only listen to the recording once. Means when the recording start, you can only listen once, you cannot repeat. And you should also practice to listen only one rather than to repeat and recheck your answer. And again you if do the same thing, so maybe a very difficult for you to improve your overall score. So whenever you practice your test, you should make sure you only listen one time during the test. But when you finish your test, so then you can listen again and again to check your mistake. And you will सर hear a variety of action. Yes, anyone have a question? जी सर, वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि पेपर में हम एक दफा से ज्यादा सुन सकते हैं? आपने बताया समझ No, नहीं आई। no, you can listen only once. You cannot repeat your listening audio. And that is the reason I already suggested you, when you practice in your home, you should practice and listen only one time during the test, because that thing actually help to improve your skill. And if you repeat again and again, so that will not help you. You can only. Yes. मैम, सर यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कि Yes आप ma'am. जैसे कह रहे हैं कि प्रैक्टिस के दौरान हम अगर जैसे इनिशियल प्रैक्टिस होती है एक हमारी, कि अभी हमने Yes. स्टार्ट की होती है प्रैक्टिस, तो हमें तब थोड़ा मुश्किल होता है अल्फाज सुनने में और कोई मिस हो जाता है, तो उसमें नो प्रॉब्लम, आप रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, यानी कि आप फुल टेस्ट कर रहे हैं लिसनिंग का, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तब आप कोशिश करें कि आप रिपीट ना करें। शुरू शुरू में आप कर सकते हैं रिपीट, आप सिर्फ अपनी लिसनिंग को बेहतर करने के लिए, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि आपको रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जो फाइनल टेस्ट होता है वहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम बेशक 1 सेकंड भी पीछे नहीं कर सकते। वो उसने एक ही रिदम में चलना है और वो खुद पॉज होता है, ठीक है, वो टाइम हमें देता है कि आपके पास इतना टाइम है रिव्यू करने के लिए, और वही बस। नहीं तो वो एक पूरे रिदम के साथ ही चल रहा होता है।
Yes, ma'am, your point is really very helpful for student, but here I will like to add one point. Being at the initial stage, you should repeat, but I will not suggest you repeat it. That is the reason I said when you complete your one section, then you listen again and again why this mistake is happen. Usually when we practice like that, so we don't care when we maybe spend at least 1 month or maybe 2 months, we repeat the same सीन एंड वी शुड रिपीट सेम। सो जब हम इसे करेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2 वीक में आप ऐसे कर लें, लेकिन उसके बाद आप ऐसा ना करें। आप ऐसा करें कि जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप सुने, फिर आप उसे मल्टीपल टाइम रिपीट करें कि क्यों मिस्टेक हुई है। क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं स्टार्टिंग पर कि दोबारा उसे चलाते हैं फिर सुनते हैं, तो वो एक हमारी हैबिट बन जाती है। तो वो हम फिर उसे मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं कि रैदर दैन उसे लीव कर दें। तो ये इसलिए सजेशन है कि आप जब प्रैक्टिस करें फिर आप मेक श्योर करें कि आप रियल एग्जाम में बैठे हुए हैं। जब आप कंप्लीट कर लें तो फिर आप जो है ना उसे अपनी मिस्टेक को देखें, फिर मल्टीपल टाइम उसे सुने कि क्यों ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर क्या मैंने गलती की है। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जी सर, आप सही कह रहे हैं कि ऐसे हैबिट भी बन जाती है, लेकिन वही बात आ जाती है कि प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी है, अपना एनालिसिस आपने खुद करना है। अपने इन्विजुलेटर उस टाइम पे प्रैक्टिस के दौरान आप खुद हैं, तो आपने खुद देखना है कि मैं किस तरह से बेहतर हूँ। वही ना, यहाँ पे यही बात आ जाती है कि आपने खुद से चीट नहीं करना। हमें तो अपनी सारी बातें पता होता नहीं कि हम कितने पानी में, हमें कितना आता है। तो वही बात आ जाती कि आपने रिपीट करें, लेकिन उसको हैबिट नहीं बनाना। ठीक है, शुरू में आपको मुश्किल आती है ऑब्वियसली। जब एक स्टूडेंट्स भी यहाँ को, मैंने भी जब स्टार्ट किया था मुझे मुश्किल आती थी, मैं रिपीट करती थी। लेकिन एंड पर जब तक मैं प्रैक्टिस करती गई, आगे मॉक टेस्ट मैंने किए काफ़ी। ठीक है, उसके अंदर मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी रिपीट करने की। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ी? क्योंकि मैंने खुद पे कंट्रोल भी रखा कि मुझे बस इतना ही सुनना है, जो समझ आ गया वहीं पे लगाओ। ठीक है, तो इस तरह से आपने खुद ये कंट्रोल डेवलप करना होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो चैलेंजेस आते हैं दैट आर रियली इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट इट। द फर्स्ट वन इज दैट कंसंट्रेशन। मीन इफ यू लूज योर कंसंट्रेशन एट एनी मोमेंट यू कैन नॉट select the answer in the एनी सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट सेक्शन सुन रहे हैं, स्टार्टिंग पर आपसे एक क्वेश्चन मिस हो गया तो आप उसकी फिक्र में लगे हैं, ये क्यों मिस हो गया, ये तो मिस नहीं था होना चाहिए, मैंने तो मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की है। कंसंट्रेशन लूज हो गई तो आगे जितने भी आ रहे हैं वो सब इसी तरह जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है, अगर कोई मिस हो गया तो जाने दें। लूजिंग योर प्लेस इन द रिकॉर्डिंग। मीन जब आपने अपनी प्लेस को लूज कर दिया है कि जैसे मीन जब स्पीकर या रिकॉर्डिंग चल रही है तो आपने उसके अकॉर्डिंग चलते रहना है। अगर आप कहीं पर भी अपनी कंसंट्रेशन को लूज कर देंगे तो आप आंसर को मिस कर सकते हैं। राइटिंग द रॉन्ग नंबर ऑफ वर्ड फॉर योर आंसर। मिसाल के तौर पर जो अब आपके पास सेक्शन 1 है और सेक्शन 3 है 4 है, उसमें ज़्यादातर आपकी जो है ना राइटिंग की मिस्टेक होती है, सिंगुलर की बजाय प्लूरल लिख देते हैं। सम टाइम आप कैच नहीं कर सकते तो आप रॉन्ग वर्ड लिख देते हैं। तो वहाँ पर आपने इसे भी प्रैक्टिस करते हुए इस हैबिट को भी बिल्ड करना होता है कि आप करेक्ट लिखें। तो वो भी हम आपको जो है ना गाइड करेंगे कि कैसे आप सिंगुलर लिख सकते हैं, प्लूरल लिख सकते हैं। नॉट स्पॉटिंग पैराफ्रेजिस। यूजली जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होती है एज इट इज स्पीकर नहीं उसे बोलता, उसे वो पैराफ्रेज करता है। तो आपको भी हैबिट बनानी होती है जब आप रिव्यू करें तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं वो चेंज नहीं होते, उन्हें आप हाईलाइट करना है। उसके अलावा जो आपके पास वर्ड होते हैं उन्हें वो पैराफ्रेज कर लेता है। तो आप खुद भी जब रिव्यू करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका क्या जो है ना डिफरेंट मीनिंग बन बन सकता है। इसके लिए भी आपकी फोकस बेहतर हो सकती है। गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय डिटेल। यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं लिसनिंग क्वेश्चन टाइप, जैसे सेंटेंस कंप्लीशन, समरी, फॉर्म कंप्लीशन, नोट कंप्लीशन और मल्टीपल चॉइस। टेबल कंप्लीशन, डायग्राम, लेबल, मैप, प्लेन कंप्लीशन,
फ्लो चार्ट कंप्लीशन। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है कंप्लीट द फॉर्म बिलो। यूजली ये आपके पास पार्ट वन सेक्शन वन में आता है। ये जस्ट आप इसे देख लें कि किस तरह की ये होती है। ये भी आपके पास पार्ट फोर में ये आता है कंप्लीट द नोट्स बिलो। और ये एक स्टूडेंट के लिए अब बेनिफिट भी है कि जो प्रीवियस टेस्ट था ना आईएलटीएस का, उसमें आपके पास वन वर्ड की बजाय वो कहते थे राइट टू वर्ड। तो उस केस में बड़ा डिफिकल्ट होता था कि स्टूडेंट सम टाइम मिस कर देते थे। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो टू वर्ड लिखते हुए, तो वो भी एक इशू है। लेकिन अब ये है कि आपने सिर्फ वन वर्ड लिखना है, तो ये दैट इज़ अ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट टू नो अबाउट इट। ये आपके पास फ्लो चार्ट है। इसमें आपके पास फाइव आंसर दिए होते हैं, इनमें से एक आपने सेलेक्ट करना होता है और इनमें आपने फिल करना होता है। ये यूजली आपके पास कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, कंप्लीट द फॉर्म बिलो, दैट आर द सेम। MCQs type, these are a single type MCQs. You just select one word, one option. These are double types MCQs. You should select two from given five option and the last one. So here we will just try to practice, because we know that a different technique and strategy, so how we can use it, so that is important. So here we will also practice some question of section 1 and section 2. Basically today we will discuss section 1 and section 2. So in our section 1 and section 2, mostly the question are coming in the recent and also in the present test. They related to complete notes below one word only in a part 1 and a part 2. But in a part 1, two speaker involved and very basic conversation. But in a section 4, when complete notes below question type come, that are really difficult, because the idea related to lecture, mainly university lecture about different subject. So you should need to understand more about it. So these are signpost word that you should be know that when you start your practice, because that thing help you to know how speaker change their idea during the listening, and when the right answer can come. For example, as the speaker move from one point to another, they will say things like looking at X, moving on to Y. Another interesting point is, so should you should pay more attention to these words. And there are also other some linking advice you should also know, that will also help you to find the answer. And you can also follow the recording when you know about these contrast word or these linking devices. Firstly, secondly, thirdly, also in addition, moreover, furthermore, by contrast, conversely, on the other hand, for example, such as like, namely, but, however. So these are contrast words, and you should try to pay more attention when speaker speak these words, so that you help to understand the attitude and tone of speaker. So now, ma'am, Sabha will teach you about section 1 and how you can handle section 1. Ma'am Sabha, are you here? Yes, sir. Okay. So, Sir, yes, ma'am. सर ओपन करते हैं आप. Here, this is a website and you can use it. And on this website, you can find the real Cambridge books from 10 to 20. But here is an other website. This website is also useful, because on this website you can find Cambridge books from 1 to 20. Okay, so you can use both, and both are really helpful for practice. Sir, Yes, is ma'am.
इनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है, जो वेबसाइट में क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सेम डिफिकल्टी लेवल आपकी जो रियल एग्जाम्स होते हैं वो भी होता है, या वो रिलेटिवली इजी होते हैं? मैम बेसिकली डिफरेंट वेबसाइट अवेलेबल है, यहाँ पर डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन ये जो दो वेबसाइट बताई हैं, यहाँ पर कैम्ब्रिज के ओरिजिनल जो बुक्स हैं ना, जो मार्केट में भी अवेलेबल है और उनकी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, इन वेबसाइट के ऊपर वही है। और इनका जो डिफ़िकल्ट लेवल है ये मोर एंड लेस जो है ना एक्चुअल टेस्ट के ही अकॉर्डिंग होता है। हाँ, जो आप डिफरेंट वेबसाइट से करते हैं प्रैक्टिस, उनमें जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, सम टाइम उनका लेवल बहुत इजी आ जाता है, सम टाइम बहुत डिफिकल्ट आ जाता है। तो जब आप उनसे प्रैक्टिस करें तो वहाँ पर जो आपका रिजल्ट आए उससे आपने अपने ओवरऑल बैंड को एस्टिमेट नहीं करना कि प्रैक्टिस में इतने आ रहे हैं और एक्चुअल एग्जाम में इतने आ रहे हैं, क्योंकि सम टाइम वहाँ पर इजी आ जाता है टेस्ट, सम टाइम इतना डिफिकल्ट आ जाता है कि आपसे अटेम्प्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। और रियल एग्जाम में मतलब कैसा होता है? मतलब इसी के आसपास होता है जो हम ये इन साइट्स पे टेस्ट देते हैं, जंप इनटू और एंगोवेट? हाँ, ये मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर कैम्ब्रिज की ही बुक्स हैं, इस वेबसाइट के ऊपर 1 से 20 तक है और इस वेबसाइट के ऊपर 10 से 20 है। सर मैं यहाँ पे ऐड करूँ कुछ? जी मैम करें। ये जो यहाँ पर वेबसाइट्स पे टेस्ट दिए गए ना, ये एक्चुअल में जो असल टेस्ट आए हुए होते हैं ना, उन्हीं की ये हैं। जैसे कि मॉडल पेपर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 9 10 में हम यूज़ करते थे, कि वहाँ पर मॉडल पेपर्स के अंदर वो क्वेश्चंस होते थे जो कि पिछले एग्जाम्स में आए होते थे। तो यहाँ पर भी यही सीन है कि जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, यानी कि आज से जितने भी टेस्ट हुए हैं, तो ये उनकी ही कलेक्शन है एक। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल भी सर ने बताया जैसे कि वो वेरी करता है। कि और बेसिकली जो हमारे सेक्शन 4 होते हैं हमारे लिसनिंग के अंदर, तो उन सेक्शंस के अंदर भी जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना, वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा होता है। जो फर्स्ट सेक्शन आप देखेंगे वो बहुत इजी होता है। ठीक है, सेकंड वाला उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, और जो थर्ड वाला होता है वो ऐसे ही इंक्रीज करती रहती है डिफिकल्टी। तो आपने इस चीज़ को नहीं सोचना कि ये ज़्यादा मुश्किल आएगा या आसान आएगा। आपका मकसद अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आपको ही कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर लें। ठीक है मैम? नहीं नहीं मैम, लेकिन मैंने खुद जो है ना डिफरेंट वेबसाइट से प्रैक्टिस की है, तो इसलिए मुझे पता है। जब बाद में मैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट को देखता हूँ तो सम टाइम उन्होंने ऑर्डर को भी नहीं फॉलो किया होता। इसलिए मैंने कहा कि जब आप डिफरेंट वेबसाइट से करें तो वहाँ पर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करें। वहाँ पर जब आपका कोई रिजल्ट आए, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट इधर प्रैक्टिस कर रहा है कैम्ब्रिज बुक से, तो उसके 7 बैंड आ रहे हैं, तो वहाँ पर करता है तो उसके 5 आ जाते हैं, तो वो डिसहार्ट हो जाता है कि पता नहीं मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, मेरी तैयारी नहीं ठीक। तो इसलिए मैंने कहा कि जब आप डिफरेंट बुक से करें तो फिर आप उनके ऊपर इतना रिलाई ना करें, उनके रिजल्ट के ऊपर। वहाँ पर जस्ट आप अपनी जो टेक्निक है, स्ट्रैटेजी है, उन्हें इम्प्रूव करें। यस सर, ये बात भी सही है। जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहाँ पे जो भी बैंड आ रहा है, लेट सपोज हमारा 6.5 आ रहा है, तो जो हम रियल टेस्ट जाके दे रहे होते हैं ना, वो 0.5 बैंड आगे पीछे होता है। ये नहीं कि आपका इतना आ रहा है तो वहां पर एग्जैक्ट आएगा। क्या पता जैसे सर ने कहा कि क्या पता आप जब प्रैक्टिस कर रहे थे वो क्वेश्चन आसान हो, और जब आप रियल टाइम में जाएं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा आ जाए। तो इसलिए आपने फोकस सिर्फ अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर रखना है कि हर क्वेश्चन टाइप को किस स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं स्ट्रेटजी ऑटोमेटिक होती जाती है, आप मास्टर कर लेते हैं उसको। और फिर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको सोचना नहीं पड़ता उससे पहले कि इसकी क्या स्ट्रेटजी थी। आप बस उसको सॉल्व कर रहे होते हैं क्योंकि स्ट्रेटजी आपने ऑटोमेटिकली जहन में बिठा ली होती है। तो मकसद सिर्फ प्रैक्टिस का है, बाकी इंशाल्लाह आप रियल टाइम में भी इजीली कर लेंगे। जी मैम, सबा आप रेडी हैं? Yes, sir. Yes, sir. First of all, Assalamu alaikum everyone. मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूं. My name is Sabah. Today I'm going to present the IELTS listening test. So I will cover, inshallah, section 1. Um, the test is based on note completion, and I will explain the main points and strategy briefly. First of all, I will talk about section 1. So, section 1 is usually a conversation between two peoples.
या मोस्टली जो है ये कन्वर्सेशन दो लोगों के दरमियान भी हो सकती है, होती है बल्कि। ठीक है, तो आपने ये चीज़ को देखना है और देन द क्वेश्चन आर वेरी इजी एंड स्पेशली रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके। तो वी शुड लिसन केयरफुली फॉर लाइक नेम्स, नंबर्स हो सकते हैं, डेट्स हो सकते हैं या प्लेसेस हो सकते हैं। स्पेशली ये पार्ट 1 में यही चीज़ इंक्लूड होती है और पार्ट 1 टू मच इजी। देन सर यू कैन स्टार्ट द ऑडियो। First, you describe about some review, how you can review it. But we started. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को देखना है कि आपको उसने एज अ वर्ड दिया हुआ है या फिर एज अ नंबर दिया हुआ है, और आपको कितने वर्ड्स दिए हैं, लाइक 1 दिया है या फिर अ नंबर दिया या 2 या मोर ज्यादा से ज्यादा, या कह देते हैं कि मोर देन 2 वर्ड्स। तो आपने सबसे पहले ये चीज को फोकस करना है। देन आपने इस चीज को भी देखना है कि ये यहाँ पे ये ऊपर क्लॉक बना हुआ है, तो काउंट डाउन एट द टॉक, जैसे वो टॉक बोलेगा तो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन वो फिर आगे आपको सबसे पहले इसका आपसे आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से किस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कंप्लीट द नोट्स बिलो, अब यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है तो देन आपको पता चल रहा है कि ये नोट कंप्लीटेशन उस चीज को ही शो कर रहा है। ठीक है, और देन फिर आपने उसके बाद देखना है 1 वर्ड है या फिर नंबर है। तो अगर आपको 1 वर्ड दिया है तो आपने 1 वर्ड ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपने सबसे जो चीज़ है, जब आपकी ऑडियो जब आपका ऑडियो स्टार्ट हो जाएगा तो देन आपने क्या करना है कि आपने जल्दी से सबका सब लाइक जैसे ये लिखा हुआ है एडवाइस ऑन फैमिली विजिट, आपने इसको हाईलाइट करना है। यानी कि जो जो की पॉइंट्स आपको लगते हैं कि आपको हाईलाइट करने हैं वो आपको 30 सेकंड देगा। आपने उस टाइम में देन इसको रीड भी करना है अच्छे से और उसके बाद जो है इसको साथ साथ हाईलाइट भी करना है। ये भी ना हो कि आप हाईलाइट ही करते रह जाएं और वो देन बोल जाए। ठीक है, ऑडियो जो है वो आपका जो आंसर था वो गुजर जाए। आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है। लाइक जैसे अब यहाँ पे अकोमोडेशन है, ठीक है, आप इसको हाईलाइट करेंगे। होटल ऑन जॉर्ज स्ट्रीट है, आपको ये पता चल रहा है कि ये कोई होटल है, लेकिन कौन सा होटल है ये मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, आप इसको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हमें अगर ये चीजें पता होंगी तो देन हम अपना आंसर जो है वो बहुत या आंसर के बहुत बहुत करीब पहुंच जाएंगे। देन हमें उसे पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा बनता है। फिर नीचे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ फैमिली रूम पर नाइट। अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो फैमिली रूम है वो आपको पर नाइट कितने का पड़ेगा, कितने यहाँ पे पाउंड्स का पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक और चीज क्लियर करूं, अगर यहाँ पे कोई साइन दिया हुआ है लाइक डॉलर का, पाउंड का, कुछ भी दिया हुआ, तो देन सिर्फ आप प्राइस लिखेंगे, आप साथ में साइन नहीं लिखेंगे। और अगर समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके पास डॉलर का साइन या कुछ भी नहीं दिया होता, देन फिर आपको उसके साथ मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। आर यू एग्री? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन तो नहीं? अगर मैम, किसी का पर यस। जी, एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे अगर हमें डॉलर का साइन नहीं दिया हो और अगर वो लाइक वॉइस में बोले कि $95, तो हम उसको लाइक वर्ड्स में लिखेंगे लाइक 95 और फिर डॉलर्स जो है वो इंग्लिश स्पेलिंग में लिखेंगे या साइन बना देंगे, क्या सही तरीका है? आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको टाइम को भी तो फिर देखना है ना, तो फिर आप जस्ट उसका साइन लिखें साथ में। बेस्ट मैम, ऑप्शन इसका यही है। यहाँ पर जब इस तरह का सिनेरियो है ना, तो आपने ये जो इंस्ट्रक्शन है इसे आपने देखना है। यहाँ पर लिखा है 1 वर्ड और अ नंबर। इसका मतलब है कि आप एक वर्ड लिख सकते हैं और एक नंबर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 हम्म। people। अब देखें, 2 is a number and people is a word, but you cannot here write, for example, the Lahore. If you write the Lahore, mean here is a 2 word, so this is a mistake. You should only write 1 word. So जब वो आपको कहें कि डॉलर नहीं लिखा हुआ, तो अगर आपके पास वहाँ पर है 1 वर्ड, तो आप सिर्फ नंबर लिखेंगे, डॉलर लिखेंगे ही नहीं। अगर वहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो फिर आप जो है ना लिख सकते हैं साथ, अदरवाइज नहीं लिख सकते। सही। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको समझ आ गई? देन हम मैम, आगे इस स्टार्ट करें। सिनेरियो को आप दोबारा समझा सकती हैं, रिपीट कर सकती हैं? ये डॉलर वाले को
ये वन वर्ड और नंबर जो आप सिनेरियो समझा रही हैं इसको, ये ओके हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है एग्जैक्टली? ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपने पहले तो देखना है कि आपके पास ये कौन सी टाइप का है। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट द नोट्स बिलो, तो यहाँ से आपको नोट्स लिखा हुआ है, तो ये आपका क्लू वर्ड है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये नोट कॉम्पिटिशन है। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन है, या लाइक कह सकते हैं आप सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन देखनी है कि आपके पास वन वर्ड है, टू वर्ड है। अब यहाँ पे ये देखें, जैसे सर ने अभी बताया, वन वर्ड और अ नंबर, या तो आपको एक नंबर लिखेंगे या फिर आपको एक वर्ड लिखना पड़ेगा फॉर ईच आंसर। हर आंसर में आप दो नहीं लिख सकते। अगर आप दो लिखेंगे तो देन आपका रॉन्ग हो जाएगा। मैम यहाँ पर मैं थोड़ा ऐड करूँ। यस मैम। जब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा ना कि वन वर्ड एंड और या फिर और आ नंबर, इसका मतलब ये है कि यहाँ तो आप एक वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ड क्या हो जाएगा, जैसे स्ट्रीट है, ये एक वर्ड हो गया। ठीक है, या आप एक नंबर लिख सकते हैं अलहदा से, जैसे 12 जो लिखेंगे वो एक नंबर कंसीडर होगा, वो दो नहीं होंगे। यहाँ पे 100 भी लिखेंगे तो वो एक नंबर ही है। ठीक है, ये दो सिनेरियो हो गए। तीसरा सिनेरियो ये है कि आप एक नंबर जैसे कि 1200, सॉरी 12 स्ट्रीट कर लें। ठीक है, 12 स्ट्रीट अगर लिखेंगे तो वो एक नंबर भी हो गया, एक वर्ड भी हो गया। तो ये आपके पास ये तीन ऑप्शंस है कि आप इस तरह से लिख सकते हैं इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, कि या तो सिर्फ एक वर्ड लिखें, या सिर्फ एक नंबर लिखें, या एक नंबर और एक वर्ड लिखें। इकट्ठे इकट्ठे आप लिखेंगे। हाँ बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। यही मैंने पहले चीज़ समझाने की बात की है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपको बताएगी। फॉर एग्जांपल हाँ वन जी। वर्ड और अ नंबर, मिसाल के तौर पर अब वन वर्ड और अ नंबर लिखना है तो वो आपको डेट ऑफ बर्थ किसी स्टूडेंट की बताता है। फॉर एग्जांपल 12 मार्च 1998। अब देखें यहाँ पर दो नंबर हो गए हैं और एक वर्ड है, तो ये इनकरेक्ट है। बोलेंगे वो इसी तरह, लेकिन जब उन्होंने कहा है ना वन वर्ड आ रहा नंबर लिखना है, तो फिर आपको सिर्फ यहाँ तक रुकना पड़ेगा। यहाँ आपको ये छोड़कर सिर्फ आपको मार्च 1998 लिखना पड़ेगा। ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ एक नंबर लिख सकते हैं और एक वर्ड लिख सकते हैं, या दोनों का कम्बिनेशन लिख सकते हैं, नॉट मोर देन टू। जी, आगे जब हम ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना फिर फर्दर क्लियर हो जाएगा। जी मैम, मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। जी जी सर, स्टार्ट करें आप। सर आप हाईलाइट कर दें तब तक, कॉस्ट ऑफ फैमिली को हाईलाइट कर दें, रिकमेंडेड ट्रिप्स को कर दें, देन यहाँ पे टूर ऑफ द सिटी सेंटर है, तो यहाँ पे आपको टूर को हाईलाइट कर दें कि कौन सा टूर है। उसके बाद है यहाँ पे आपके पास अ ट्रिप बाय डैश टू द ओल्ड फोर्ट है, ओल्ड फोर्ट को कर दें, अ ट्रिप को कर दें कि ट्रिप कौन सा है। ठीक है, किस चीज़ पे किया, लाइक साइंस म्यूजियम है तो यहाँ पे बेस्ट डे टू विजिट, विजिट पे कर दें कि कौन सा डे है विजिट करने के लिए। सी द एग्जीबिशन अबाउट डैश विच ओपन सून, तो यहाँ पे आप एग्जीबिशन को कर दें, किस चीज़ के बारे में एग्जीबिशन हो रही है या किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है जो कि ओपन होगी। सर इसे ऊपर करेंगे। मैम यहाँ तक ही है, 1 to 6। ओके, ठीक है सर। सर लिसनिंग स्टार्ट करें। एक मिनट स्टूडेंट, आप ना खुद से वो राइट अप कर लें, एंड पर हम आपसे पूछ कर इन्हें फिलअप करेंगे। मैं कुछ पीछे भी कर देता हूँ।
सर इतना टाइम तो नहीं लेते खैर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर वॉइस नहीं, आई थिंक सो कोई वॉइस का इशू है। नहीं आ रही है आपको? नो सर। नहीं स्टूडेंट आ रही वॉइस? सर अब आ रही है। तो ये जो रिकॉर्डिंग आ रही थी इसकी नहीं थी आ रही? नो सर। नो सर। सो व्हाट इज द इशू? अगेन सर आवाज नहीं आ रही। मिस सबा सर अली, अगर आप बोल रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही। मैं नहीं बोल रहा, उसकी ये रिकॉर्डिंग की नहीं थी वॉइस आ रही? नो सर, उसकी वॉइस नहीं आ रही थी। हम फिर इसके ऊपर लगा कर देखते हैं। हाँ जी, आप इस पे चेक कर लें सर, एग्जामिक कर लें आप। सर इसमें ऑन करें तो देखें। जी मैम आई है? नो सर। ये ऑडियो में वैसे जाके सेटिंग में चेक कर सकते हैं जूम की ना, उसमें 2 माइक्रोफोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, शायद चेंज करके देखें कुछ सेटिंग्स का इशू तो नहीं है। चले मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। जी मैम करें। जी ये कंफर्म कीजिएगा ऑडियो अगर सुनाई दे तो। science lecture अब आ about the रही। impact. चलें ठीक यस है। मैम, आ रही है बस। अ, करूँ स्टार्ट मैम यहाँ से? मैम कर दे मैम, वैसे नहीं हमारा मैम ये ये वाला नहीं था। पार्ट 4 है, पार्ट 1 जो है ना इसका अगर आप करें तो। चलें बता दें कौन से वाला था। मैम ये नीचे देखे ना, मैम, ये थर्ड पे। नीचे नीचे मैम। ये टू ना देखे ना, स्लाइड, ये है ये ये है। देखें। जी जी, हाँ यही। यस मैम यही है। Sandra, I seem to ओके, जी स्टार्ट करें। यस remember सर। you had some family visitors staying with you recently. Yeah, that's right. My brother and his family were here a couple of months ago. Okay, good. Well, I wanted to ask your advice. I've got my cousin and her family visiting next month, and as I don't have kids, I've no idea where to take them. Right. What about accommodation? Are they going to stay with you in your flat? No, thankfully, there wouldn't be room.
My cousin wants me to recommend a hotel. Do you know anywhere? Yes, I do actually. I always recommend people stay at the King's Hotel. Where's that near? It's a सर इसे स्टॉप करें तो क्या लगता है आपको कि इसका क्या आंसर आएगा? जी चैट बॉक्स में शेयर कर दें अपने आंसर्स। जी किंग्स जी जी किंग्स ही आएगा इसका। होटल कौन सा वो बोल गया? किंग्स। सर यहाँ पे राइट कर दें। जी और यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करूँगी, जैसे अब ये देखें होटल का नाम है तो जैसे किंग्स है तो फर्स्ट वर्ड आपको कैपिटल लिखना है। तो अब इस सबसे बेटर इसका हल यही है कि आप सारे वर्ड्स को कैपिटल कर दें। समटाइम्स हम लिखते वक़्त जो है वो सारे स्मॉल लिख देंगे तो ये भी हमारा रॉन्ग कंसीडर होगा। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है। इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप सारे वर्ड्स जो है वो कैपिटल में लिखें। नेक्स्ट स्टार्ट करें सर। about 5 minutes walk from Murray Station, so nice and central. It's actually on George Street. Oh, yes, I know. I think they're on quite a tight budget. So how much roughly is it to stay there? If you book a family room, it's about £125 per night. My brother paid for 2 double rooms in the end, and I think that was around £95 for each room. Oh, ओके स्टूडेंट्स आपको क्या लगा इसका? चैट बॉक्स में इसके आंसर दें। उसने आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। हमसे पूछा क्या है? उनसे पूछा है कॉस्ट ऑफ फैमिली रूम। फैमिली रूम उसने पहले बोल दिया, वो उसने कहा कि 125 पाउंड्स। लेकिन जो उसने 95 बोला वो उसने क्या बोला? वो फैमिली रूम के लिए नहीं बोला उसने, ईच रूम के लिए उसने बोला। तो हमें तो यहाँ पे देखना है कॉस्ट ऑफ फैमिली रूम। तो इस चीज़ को भी आपने इंतहाई गौर से चेक करना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो ऐसे भी अगर हम बेदहानी से जो है हम ऐसे 95 राइट लिख देंगे तो ये भी हमारा रॉन्ग कंसीडर होगा। मिस मारिया आपको क्लियर है? रिपीट करके देख लेते हैं ऑडियो फिर ज्यादा क्लियर जी, जी। एक दफ़ा सर is थोड़ा it सा to रिपीट stay कर दें। there? If you book a family room, it's about £125 per night. My brother paid for 2 double rooms in the end, and I think that was around £95 for each room. Oh, that's not too bad. So सर स्टॉप करें। मिस मारिया आपको क्लियर है? ओके। सर स्टार्ट करें आगे। ऑडियो ऑन करें। जी मैम स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है। ओके, ओके मुझे लगा सर सॉरी मैम। Sorry. मैम फातिमा आप शेयर स्टार्ट कर दें। how old are your cousin's kids? 12 and 9. So I want to organise some trips while they're here. I was thinking of doing a bus tour of the city centre, as none of them have been here before. Those bus tours are quite expensive. I think it's better to do a walking tour. जी स्टूडेंट्स क्या लगा इसका आपको? उसने बस टूर कहा लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो बेस्ट जो टूर है वो क्या है? वॉकिंग टूर है। मैम एक दफ़ा दोबारा रिपीट करें ये यहीं से ही। Thinking of doing a bus tour of the city centre, as none of them have been here before. Those bus tours are quite expensive. I think it's better to do a walking tour. It gives you a much better feel for the city. There's one that starts from Colton Square. It takes a couple of hours and doesn't cost that much. Sounds good. मैम स्टॉप करें और इधर क्लियर है आप सबको? एनी इशू? अगर किसी को इशू नहीं है तो देन फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। I'll look that up, thanks. If the weather's nice, one thing you could do is visit the old fort. You could get there by boat. The whole trip takes half a day. That's a really good idea. I'd like to do that myself. And if the weather's bad,
I was thinking they could go to the science museum. मैम स्टॉप कर दें, आंसर इसका गुजर गया है। जी स्टूडेंट्स, इसका क्या लगा आपको? बोट, नॉट रोड। अ ट्रिप बाय बोट बोला उसने, टू द ओल्ड फोर्ट। मैम कैरी ऑन। But maybe they could do that as bad. I was thinking they could go to the science museum. But maybe they could do that when I'm at work. Yeah, don't forget, it's closed on Mondays. They're here from Saturday for 4 nights, so Tuesday would be best, I think. And it won't be so crowded then. इसका क्या आप लोगों को लगा? सबको क्लियर है? जी मैम इसका ट्यूसडे लगा दें, इसका ट्यूसडे है। जी वो देखे ना, ऐसे उसने 3 डेज के नाम लिए, तो ये सारे डिस्ट्रैक्टर्स थे। ठीक है, हमने चूज क्या करना है कि जो हमने हाईलाइट किया कि बेस्ट है, तो इस तरह से आप हाईलाइटिंग बहुत इफेक्टिव होती है हमें अपना आंसर तक पहुंचने के लिए। हाँ जी। Saturdays are terrible. I took my kids to the exhibition on old computers there, and it was far too crowded. I wanted to go back, but it's finished now. That's a shame. My cousin's kids would have enjoyed that. There's another one starting soon on space, which looks really good too. Okay, well, I'll mention that to my cousin. जी स्टूडेंट, इसका क्या आपको लगा? मैम मुझे लगता है थोड़े से और चलेगी आगे। नो मैम, आंसर हो गया था उसका। वैसे Before आंसर you हो hear गया था। जी जी देखिए जी आगे हो स्टूडेंट्स, the rest of the conversation, you यस have यस मैम। some time. हर स्टूडेंट को क्लियर है कि एग्जीबिशन जो है वो किस चीज के बारे में है? स्पेस के बारे में। देन मैडम आगे जो है हमारा फूड का टॉपिक है, तो ये अब हमसे जो है वो क्वेश्चंस पूछेंगे, बताएंगे, तो देन आप लोगों ने इस चीज को देखना है। मैम ऑडियो स्टार्ट मैम करते हैं। आई थिंक टाइम कम है, तो हम थोड़ा सा पार्ट 4 को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज उसका भी टाइम है। देख ले सर, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स ये बाकी जो रह गए हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है? ये हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, स्लैक पे। तो आपने ये एज अ होमवर्क इसे कंप्लीट करना है। मैम, ये बुक 20 है, उसका जो टेस्ट 4 है उसका जी सेक्शन 4, अगर आप जी उसे जी विजिबल कर दें। यस। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास जो पार्ट 4 और पार्ट 1 है, ये आपके पास समझिए कि एक गेम चेंजर है, क्योंकि इनमें 1 वर्ड आपने राइट अप करना होता है, और अगर आप इसे प्रैक्टिस करें तो इसमें आपकी मिस्टेक भी कम हो सकती हैं। एमसीक्यूज जो होते हैं उसमें ज़्यादा जो स्पीकर आपको है ना डेविएट करता है, तो अगर आप इनमें पार्ट सेक्शन 1 और सेक्शन 4 में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आप इजीली 7+ बैंड की तरफ जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप के एक्सेंट यूज़ होते हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो आप डिफरेंट सुनते रहें, लेकिन आप इन्हें भी प्रैक्टिस करें तो आप इजीली जो है ना अटेंड कर सकते हैं, आप एडजस्ट हो जाते हैं डिफरेंट एक्सेंट के साथ जब आप कंटिन्यूस इसे भी प्रैक्टिस करें। तो हमारे पास नोट, कंप्लीट द नोट बिलो है। सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शन को देखना होता है, दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपने ये जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है इन्हें देखना है, क्योंकि जो हेडिंग मेन है इन्हें वो अपनी आइडियो में रिपीट करता है कुछ फ्रेजेस के साथ, लेकिन आप इन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप सिर्फ कुछ कंप्लीट ना आप करें, आप बस कुछ जो मेन है उन्हें आप कर लें, तो उससे आपको इजी हो सकता है। द इम्पोर्टेंट ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे टू लोकल कम्युनिटी, के जो लोकल कम्युनिटी है उनके लिए बर्ड्स क्या अहमियत रखते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो हाईलाइट जब आपने करना है तो आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं आंसर को। फॉर एग्जांपल, ये जो बर्ड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, दे डिस्ट्रॉय, किसे कर सकते हैं, अदर रेडोडेंट रोडेंट्स। अब ये जो रोडेंट्स है ये स्मॉल आपके पास स्पीशीज होती हैं, जैसे
रैट्स चूहे। तो मतलब आप समझें कि ये जो बर्ड्स हैं उन स्मॉल स्पीशीज़ के लिए जो है ना ख़तरनाक है, हार्मफुल है, उन्हें वो डिस्ट्रॉय करती हैं। तो आप फिर यहाँ पर जिस चीज़ को यहाँ पर आपको समझ आ गई कि रोडेंट्स को वो जो है ना डिस्ट्रॉय करेंगे, तो यहाँ पर भी जो आपके पास आंसर होगा वो उसी के रेलिवेंट हो सकता है, आप उसे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर यहाँ पर ओके, जो टॉपिक है वो प्रे ऑफ बर्ड्स है, यानी कि जो बर्ड्स के शिकारी हैं ना उसके बारे में है कि वो कैसे फायदेमंद है लोकल कम्युनिटीज के लिए। बर्ड्स की बिल्कुल मैम। इम्पोर्टेंस नहीं है, जो उनके शिकारी हैं ना बर्ड्स के, उनके बारे में। यस मैम, यस मैम। जी। तो यहाँ पर आपको ये आप जो है ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। द सेकंड वन, जब आप गो थ्रू करें, दे हेल्प प्रिवेंट फार्मर फ्रॉम बीइंग बाइटन बाय समथिंग। मीन के जो आपके पास फार्मर होते हैं कौन सी चीज़ उसे बाइट कर सकती है, आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो आप प्रिडिक्ट जब करेंगे तो जब आइडिया रिपीट होगी या चलेगी तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर रहे हैं सकते हैं कि जो मैंने प्रिडिक्शन की है क्या उसके अकॉर्डिंग ही उसने आंसर दिया है। इससे आपको होता क्या है, आपकी कंसंट्रेशन जो है ना वो आंसर के ऊपर आ जाती है। आगे हमारे पास आंसर नहीं है, ये जस्ट आप यहाँ पर लोकल कल्चर हाईलाइट कर लें, मैनी कर लें, ताकि आप आइडियो के साथ गो थ्रू करते रहें ताकि आप मिस ना कर दें। अगर आपने कहीं पर भी लूज़ कर दिया तो आप फिर उसे फॉलो नहीं कर सकते, ये आपके लिए एक फिर हार्मफुल डिफ़िकल्ट हो सकता है। यहाँ पर है दे नो सपोर्ट द इकोनॉमी बाय इनकरेजिंग समथिंग इन द एरिया। मीन अगर आपके पास एरिया है तो उसकी जो लोकल इकोनॉमी है वो कहते हैं कि वो क्या होगी, बेहतर होगी जब आप इनकरेज करें। क्या वहाँ पर आप बिजनेस को इनकरेज करें तो वो इम्प्रूव हो सकती है, क्या आप स्मॉल फार्म को इनकरेज करें। सो डिफरेंट वे से जो इस लोकल इकोनॉमी को बेहतर कर सकती है वो आप माइंड में एक इमेजिन कर सकते हैं जिससे आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो मैम हम थ्री ही को ही डिस्कस करते हैं क्योंकि टाइम कम है, ताकि जी। हम इजीली। एक मिनट मैम, सम टाइम जब ऑडियो स्टार्ट होती है सम टाइम वो जो आंसर है वो स्टार्ट पर ही दे देता है, सम टाइम 1 मिनट वो वैसे ही जनरल बात करता रहता है फिर आंसर की तरफ आना है। तो आपने भी पेशेंस रहना है, आपने ये नहीं करना कि कितना टाइम हो गया है, शायद मैं पीछे रह गया हूँ। आपने ये जो कीवर्ड हाईलाइट किए हुए हैं इन्हें आपने फॉलो करते हुए आना है, फिर आप डेविएट नहीं हो सकते स्पीकर से। मैम स्टार्ट You करते will हैं hear आप। part of an environmental science lecture about the impact. We've been looking at different types of conflicts that may arise between wildlife and humans at the boundaries of protected areas, such as national parks and animal sanctuaries. I'd like to illustrate this by telling you about some research that I've been involved in recently in the Central African country of Zambia, in the area around the Chembe Bird Sanctuary, which contains over 300 of the listed birds of Zambia. These include a number of birds of prey, such as eagles, hawks, and owls, that live by hunting and killing other birds and animals. Now, most of the people living in the local communities near to the bird sanctuary are small-scale farmers, and these birds of prey provide important social and ecological benefits to them. For example, a lot of damage can be caused to farmers' crops by rodents, such as rats, which would consume the crops as they जी grow in, मैम रोके यहाँ पर। as well as after harvest. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये जो आपके पास है ये हार्मफुल किसके लिए है, रोडेंट्स सच एज, फिर उन्होंने मेन आंसर दिया है, तो क्या आंसर है। हाँ यस रैट्स। ये जो रेडो रोडेंट्स है इसमें आपके पास जो रैट्स है वो भी इसी स्पीशीज में आ जाता है, तो पहले उन्होंने ये नाम लिया फिर उन्होंने ये लिया। तो ऐसे हो सकता है सम टाइम हम सोचते हैं कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा, नहीं सम टाइम वो अगला बोलकर जो है ना पिछले को एक्सप्लेन कर देता है। तो आपने ये भी जो है ना ध्यान में रखना है जब आप सुने। If they weren't hunted and killed by the birds. And the predatory habits of these birds also protect farmers in other ways.
For example, a major danger to rural workers is snakes, whose bite may be dangerous or even fatal, and birds. यहाँ पर क्या है आंसर? यस। अब देखें यहाँ पर उन्होंने प्लूरल लिखा हुआ है, तो ये जब आप आइडियो को सुनेंगे तो आपने इसे ध्यान से सुनने में भी, आप अगर सिंगुलर लिख दें तो वो रॉन्ग होगा। जस्ट आपने एक एस जो है ना उसे लेफ्ट करना है, तो आपका आंसर सारे का सारा गलत हो जाना है, तो इसे आपने मेक श्योर करना है। of prey have a major role in keeping their populations under control. Local people have always been aware of these benefits, and for years, even before the sanctuary was opened in 1973, the birds played a key role in the culture of the region. However, more recently, the sanctuary and its birds have also become increasingly important to the community in economic terms, because at present, after a relatively slow start, tourism has become an important source of revenue for them. However, although these birds of prey are protected जी by मैम the रोकें यहाँ पर। अब यहाँ पर यस उन्होंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट रेवेन्यू में है वो किसका है? टूरिज्म का। तो टूरिज्म की वजह से जो लोकल इकोनॉमी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, बेनिफिट होगी। सो दैट आर द वे यू कैन यूज टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल। ओके, सो देखें सम टाइम हम क्या करते हैं, हम हाईलाइट कर लेते हैं वर्ड जो हमारा क्वेश्चन होता है ना उसके आगे, जैसे सपोर्ट द इकोनॉमी, इसे हमने हाईलाइट कर लेना है, तो हमने फिर देखना है कि ये जो ऊपर फार्मर है उससे यहाँ तक वो कब आता है, तो फिर वो आप मिस कर देंगे। ये जो अदर वर्ड है, लोकल कल्चर, ये जब आप बीच में हाईलाइट कर देंगे तो फिर जो आपके पास रिकॉर्डिंग चल रही होती है उसे आप फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ आ रहे होते हैं। तो बीच में जहाँ पर क्वेश्चन नहीं है वहाँ पर भी आप हाईलाइट करें ताकि आप रिकॉर्डिंग को मिस ना करें। अगर आप मिस कर दें तो फिर दोबारा फॉलो करना मुश्किल है। और सम टाइम अगर स्टार्टिंग पर क्योंकि सम टाइम वो जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट सर होती है विद इन 10 सेकंड में जो है ना वो आंसर दे देता है, सम टाइम वो लेट करता है, वहाँ पर आपने पेशेंस रहना है। जी सर, वाइंड अप करें, 1 मिनट है और ये ऑटोमेटिकली फिर बंद हो जाएगी अगर दूसरों ने स्टार्ट कर ली तो। जी मैम आप कुछ पॉइंट बता दें। जी यहाँ पर क्वेश्चन था एक कि फोकस कैसे करें हम। तो उसका तरीका यही है कि जहाँ पर आप प्रैक्टिस करें अपने रूम में तो वहाँ पर कोई भी नॉइस ना हो, अकेले बैठे हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। और साथ में आपने जो है ना टाइम को इतना शुरू शुरू में अपने ऊपर हावी नहीं करना। प्रैक्टिस के दौरान जैसे हम रिपीट कर सकते हैं वैसे आपने टाइम को कंसीडर नहीं करना। जब आप मॉक टेस्ट करें तब आप टाइम को कंसीडर करें। पहले आप अपनी स्ट्रेटजीज पे फोकस करें, ठीक है, फिर बाद में आपने टाइम लिमिट और ये ऑडियो के जो है ना लिमिटेशंस इनको देखना है। बाकी हाँ किसी का कोई यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बताऊंगा कि स्टार्टिंग पर आप क्या करें कि एक क्वेश्चन को आप सुने, फिर सुने और अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करें, वहाँ पर देखें कि स्पीकर अपना जो एटीट्यूड है वैसे कैसे चेंज करता है, अपना ओपिनियन कैसे चेंज करता है। जब आप इस वे से सुनेंगे ना हर क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम, तो वो बेनिफिट होगा। चलें, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह टाइम हाफिज। अल्लाह हाफिज़।